नाजरीन, welcome to our show. It is our. दो मस्ताने, एक नहीं, तीन नहीं. हमारे बहुत दो मस्ताने हैं वैसे अगर देखा जाए तो. मस्ताने बहुत है, लेकिन जितने मस्त हम मस्ताने हैं. मस्त कोई मस्त मस्त मस्ताना हो मस्त ही नहीं मस्त. सकता. Oh yes. इस पे तो गाना हम बनने चाहिए. चीज बड़ी हैं मस्त. वैसे फिल्म बननी चाहिए दो मस्ताने पर तो. हाँ, जिंदगी बनाने गए दो. क्या वो दैट सॉन्ग है? वो तो गाना था. ओए हाँ. उसी से हमने चोरी किया है टाइटल. Yes, that's true. Anyhow, हम चोरी चोरी करते रहते हैं, चोरी चोरी. हमारे शो पे खुशामदीद आप लोगों का, presented by Cinerines Media Company Limited. Wait, right there. I always try to get my finger on the pulse. If you're using the wrong finger, that's why. Oh, I'm sorry. Yeah. Okay. Anywho. All right. पिछले दिनों एक यहाँ पे मैंने खबर पढ़ी कि there was a contest. It was a neck decorating contest. Neck decorating? Neck. You mean like in Africa where they Yeah. have all those like those? No, it was a different one. And do you know who won? Uh-oh. Can you take a guess? Well, it went neck and neck with. It was a tie. ये डेड जो कुछ हमने बाद के लिए रखना चाहिए था, जल्दी आ गया. खैर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे. My friend here said something a little out of line last week. So I don't know if it was out of line. I think it was totally out of line and for good reason. क्योंकि उसकी वजह से. No, if it's out of line, then and it's for good reason. Is it out of line? It is out of line. Yeah, it's within the outer lines. Anyhow, point ये है. I think we went over the line. He went over the line. Line looks like a dot to you. Yes, it was a dot to you. Chandler. The joy. तो इनका वो क्लिप आप फिर से देखिएगा. उसमें we got a lot of comments. The video went viral. Ridiculously viral. But the biggest takeaway or the comment or the confusion was around the fact कि Ming Lee कौन है? Who is Ming Lee? And who is Ming Lee? Who is Ming Lee? आपको पता? Do you guys know who Ming Lee is? Abdullah, you know, there was a movie that came out in 1995 called The Usual Suspects. Yes. In The Usual Suspects, there was a guy by the name of Kaiser Sose. Kaiser Sose. You know? Kaiser Sosa. समोसा जो हमने अभी खाए हैं. वैसे यार बड़ी मिर्ची थी. वैसे क्या लजीज. ताहिर लेके आया था ना. Anyway, doesn't matter. नहीं, एमन लेके आया था. Yes. Okay. Anyway, the point is that this whole Ming Lee thing has taken on a life of its own. But now, we want to know from you who Ming Lee is, because मैं तो Google पे चला गया. Yeah. And you know मुझे कितने Ming Lee मिले? The biggest Ming Lee, the second biggest after your Ming Lee, your fictitious Ming Lee. Right. No, how do we know it's fictitious? We don't even know. Anyways, the second biggest Ming Lee is a character from a Disney movie called what's it called? Turning Red. Came out in 2022, and the main protagonist of that movie is Ming Lee. Ming Lee. Ming Lee वैसे चाइना के एक शहर में क्या नाम है वो गुंगजू करके कोई नाम है. नहीं, गुंगजाओ डिस्ट्रिक्ट. गुंगजाओ डिस्ट्रिक्ट. उसमें एक बहुत बड़ी कारपेंटरी की फर्म है Ming Lee Limited. Ming Lee Limited, जिसमें पूरी जो फैमिली जो है वो वहीं काम करती है. उनका सब नाम है Ming Lee. एक Ming Lee the first, Ming Lee the second, Ming Lee the third, मतलब वो सब. Ming ने पता नहीं क्या ली है, लेकिन हाँ, कुछ ली है. कुछ ली है. But apparently a lot of people actually think, क्योंकि हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते DeepSeek की. Yeah. DeepSeek, which has now been banned for out of jealousy and envy. It really honestly is that. And rage. It is. And retaliation. लेकिन बहुत से लोग समझे कि Ming Lee is the actual founder of DeepSeek. He is. He is. He is. Look, man. We are convinced. He is. I'm telling you, Ming Lee is the one who is the mastermind behind DeepSeek. Oh, DeepSeek. And DeepSeek. Who the hell is it? What's DeepSeek, man? Anyway. Six. S-I-X. It's S-I-X. It's actually Seek. It is Seek. That's what I'm trying to say. It should have been Deep something else. Deep. I don't know, man. Deep eyes, deep. Suck deep. Throat. Whatever. It should have, you know, it doesn't really matter what it is. Bottom line is, people, they're crazy. You know, the online world and the social media world is nuts. It has no censorship. It has great creativity. Here's the thing, though. We all think that there is no Ming Lee, but there is a Ming Lee. There is a Ming Lee. There's a joke about that being, okay, who's Ming Lee? Who's Ming Lee? Okay, wait, we need to find. Ming Lee was behind this whole thing. This whole thing that knocked the Western AI market right off the map. Yes. So much so that they had to ban it. Matlab, that will last 30 days. Abdullah, why did they ban it? Because of Ming Lee. Other things do.
Because mainly is real. Is real. Is real. Just like And- Kaiser Sose was real. And Kaiser Sose was real, and I'll tell you something. Is real. Is real. Is real. And then banning is real. Is real. Connect the dots. Tariffs is real. Is Or are real, but dinosaurs is real. Everything is real. This guy right here, he really is for real. I am real. My name is Aaron. It's a very beautiful Jewish Yeah. name, Abdullah. Yeah. And my name is my as Arabic as it can get. Abdullah and Aaron, the Muslim and the Jew working together side by side. The one thing that Muslims and Jews don't do is Mhm. drink. We don't drink. That's right. I But how about we talk about someone who not only drinks but drinks with a lot of enthusiasm. Yeah. Show You me know? the money, man, or show me the honey. You know, sometimes I think, Doug Ford, I think we should make sure that we don't. Nicely, yeah. Yeah. That's yeah. what I'm gonna Yep. do. ये लग रही है इंडियन फिल्म की बोतल. What I यार एक लगा ले Excuse me. एक लगा ले हाँ. अभी नहीं समोसे के साथ. समझ से ना कुछ अभी यार पेट खाली अभी मसले शुरू हो जाएंगे. What you were Okay, saying? I was saying that यार ये फोर्ड जो है ना ये बड़ा मतलब दीवाना है इस चीज का, बड़ा शौकीन है. हाँ. No matter what problems we have in terms of our economics here in Canada, or our problems in terms of trade with the United States, with NAFTA, North American Free Trade Agreement that we're supposed to be having, which is non-existent now. Having said all this nonsense, Yeah. Ford believes that in order to solve all problems, alcohol is paramount. Abdullah? Yeah. What do you think? I think as long as he's using Canadian products, I think I'll side with him. Really, eh? Yeah, at least for the next 30 days. I mean, Trump had, he was threatening with tariffs with respect to timber in the United States and Canada. He was threatening all kinds of different things. And Ford was concentrating on this. Unless, That's the only thing that he concentrates on, alcohol. and he's going to spend the next 30 days getting drunk every single night. Yeah. And 30 days की मोहलत दे दी है. no, he's got 30 days to get absolutely sloshed, but his problem is he can't. He cannot. Because he is a big peg, is what, He's a big peg. I honestly don't know what else to call this guy, but he was more worried about this than he was worried about anything to do with how this is going to affect the Canadian economy. Yeah. This is the most important thing when it This comes is the to most important thing. to Ford. We But got you, Ford. Don't worry about it. We're dealing. We're okay now. It's been Yeah. they solved that problem last night, right, Abdullah? Well, that's what I wanted to talk about. We've heard of world wars, the two world wars. Then we had cold wars between the U.S. and Russia for a very long time. Russia. फिर हर साल रमजान और ईद के आसपास we have moon wars Moon wars. within the Muslim community. God, no. और Star Wars तो आपने देखी होगी. No. But now it's tariff, it's trade wars. Trade wars. Trade wars. और हो ये रहा है अगर if you've been living under a rock for the next last 48 hours, Mhm. U.S. Trump, not U.S. Trump, he's a own entity by the way. He is. It's a completely different entity. Trump जो है In a vacuum. मेक्सिको, चाइना और कनाडा पे तारीफें लगाने वाला है. तारीफ्स. Tarif pe tarif. Tarif pe tarif. You sound like it. I do, don't I? Son of a bitch. But he was going to impose tariffs on 25% tariff on Canadian imports. Yeah. On Mexico, China, and Canada. Yeah. China, I think they're still not out of the woods. Canada or Mexico को No, Bakaida China has actually threatened them with tariffs. हाँ तो नहीं तो that's what अपना क्या नाम है यार उसका Trudeau. तो नाम भी भूल गया सर हाँ, सर. उसका बेचारे का Oh, sorry. Sorry. Trudeau Bitch. ने भी in retaliation with I guess for good measure he did retaliate लेकिन हमारा 25% उनके मुकाबले में it's like comparing Apples and नहीं क्या? तरबूज to तरबूज to वो अंगूर. बिल्कुल ऐसे ही है यार. गले में कुछ फंसने में कुछ पीना पीना है यार. यार ये बस this is the medicine for all health issues right here. Yeah. But Believe me. But anyway. I was going to just quickly tell you what happened in my office. I work for a bank. पूरे दिन लोग परेशान रहे कल. Seriously, yeah? कल 2nd Feb थी. हाँ.
We had a Until 3 o'clock deadline, right? Trudeau had a 9 o'clock 9 o'clock was it call 3? with Yeah. Trump, and then he had a 3 o'clock. 3 o'clock. पूरे दिन सब परेशान हैं. All the economists got together in a big boardroom. They televised the whole thing. We had a panel of 5 guys, just shaking their heads and talking about all the bad stuff that's going to happen if the tariffs go through. हाँ. और फिर 3 बजे जब वो मीटिंग हमारी चली रही थी, उसके दौरान एकदम ऐलान आ जाता है कि you know what Trump says, I'm going to give you 30 days. Give me an extension. Extension to you and to Mexico, not to China. Not to China. China को ना कर दिया उसने. China को ना कर दिया, लेकिन China ने इनको ना किया. No, we don't like you. नहीं सही नहीं है. ना तो उनके किसी का लास्ट नेम भी हो सकता है वैसे. हाँ ना. गुंगलई ना. गुंगलई ना. होंगजो ना. He was a really good friend of mine. ये मिंगली का कजन है भाई. हाँ. मतलब वो दूर का कजन है यार. ये ना है ना, वो ना खानदान का है वो. वो ना होने के बराबर है. Yeah, I hope the Chinese community does not watch any of this. But the fact of the matter is, we have nothing against the Chinese community because, in fact, Abdullah, balke, they are like our brethren. They are our. They really are like our brethren. Brethren हैं हमारे brothers. Brethrens. And we sympathize with their philosophy and their ideology. Chinese? Now. Yeah, absolutely. Lekin Abdullah, I gotta tell you. We should. We should learn from them. We should take a leaf. We should to learn from them instead of arguing with them. Look, listen. I'm not gonna say anything about Imran Khan because I gotta go to Pakistan and I don't want to get jailed and I don't want to be like turned upside down and stripped naked and all that kind of stuff. But anyways, here's the thing. He's right about one thing, man. He's turned a country that had like what 46 to 73% poverty, and he's turned that country upside down in a very positive way. You won't see. I'm not talking about China. Oh, Ming Li. Ming Li. Yeah. Mingli's uncle. उसके जो ताया जो थे, Mao. हाँ. तो. वाकई ले ली. But what I'm trying to get at, they have the solutions for serious economic problems that maybe we should start picking up over here. And I think they were trying to do something for the greater good for the entire world with Deep Sea. But I don't want to say anything now. No, we're gonna talk about this in our next episode. In our next episode, really yeah. Interesting, So you banned them. You go, hey, the powers to be. Yeah. You guys banned them. और उन चीनियों ने जो 2 चीजें की ना, they worked hard, obviously. Yeah. Like in education, they made education central. Central. Across the whole country. 100%. बहरहाल वो किसी दिन हम इस मौजू के पर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे हम। गुफ्तगू करेंगे इस पे, हम बहुत सोच विचार में। करेंगे। बिल्कुल। अभी हमें ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन हमें the good news is आप सबको, कैनेडियंस को, मैक्सिकन्स और चीनियों को बहुत मुबारक 30 दिन की मोहलत मिल गई है। हाँ। तो 30 दिन तक आप खूब घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ। Don't buy US products. That's an executive order. Absolutely, 1000%. Support your own. Yeah, although, Abdul, I gotta say one thing, man. Just like if I was a fly on the wall in that meeting, everyone was like, Sinatan, no, we're not gonna let Trump do this stuff. We're not gonna do this. We're gonna stand our ground. Did we really stand our ground, man? उसने ग्राउंड ही हटा लिया, कहाँ खड़े होते? 30 दिन के लिए तो मैदान खाली हो गया। बहरहाल आप ब्रेक पे जाएंगे, आप लोग भी कुछ पीजिए, हम भी थोड़ा ये पीते हैं। कैनेडियन है, एप्पल जूस है ना, एप्पल जूस। तो हम पी के ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिल्कुल। अपने अगले सेगमेंट को लेकर। हाँ। यार अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी। Thank you. I think she says and double that. I come here and I have been
comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा चाय सोशल स्पॉन्सर वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस ग्रेट कड़क चाय Best Kadak chai in town. Absolutely. It's Chai Social. 100% Thank you so everybody much. loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars. Scalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. फैमिली, परिवार कहने को एक बहुत छोटा सा लफ्ज है पर कितना इम्पोर्टेंट है। बेशक। आई मीन फैमिली के बिना हर चीज अधूरी है। कहने को सिर्फ एक रिश्ता है, कुछ रिश्तों का जोड़ है, पर एक एंटायर सपोर्ट सिस्टम है। ओहो, हमारे लिए, हमारे छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए एक सपोर्ट सिस्टम। कभी भी कुछ भी हो आपकी लाइफ में, फैमिली आपके अगेंस्ट नहीं होती। वो हमेशा आपके साथ हमेशा रहती है, हमेशा वही खड़ी रहती है। एक अनकंडीशनल लव का साइन होती है फैमिली। आपको कभी भी किसी की जरूरत हो, फैमिली में कोई ना कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे आपकी मम्मा हो, पापा हो, आपके भाई बहन। तो ये सब फैमिली में। और क्या क्या आपको लगता है, जैसे फैमिली हमें और क्या सिखाती है? हमें प्यार का मतलब सिखाती है, हमें एक साथ त्योहार सेलिब्रेट करना, और हमारी टुगेदरनेस। व्हाट इज टुगेदरनेस? ये सब चीजों का एक प्रतीक है, एक सिंबल, एक प्यार का सिंबल एक फैमिली है। तो जब इतनी सारी चीजें, जैसे हमारी बॉलीवुड है, जब लव स्टोरीज हमें सिखाती है, तो फैमिली की भी इम्पोर्टेंस कई मूवीज ने, मतलब कई डायरेक्टर्स ने और बॉलीवुड ने हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस भी इन्हीं मूवीज के चलते हमें काफी बार दिखाई है। तो आज दोस्तों, लाइट कैमरा क्लासिक्स के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक परफेक्ट फैमिली मूवी, जिसकी किरदार आज हम फिर दोनों बन के आए हैं। शायद आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है और मैं क्या बन के आई हूँ और कौन सी फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी जी, नहीं अब आप ही सोचिए कि हम जो पहने हुए हैं और ये जो फैमिली वैल्यूज की बात कर रही हैं, तो ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है कि जो पूरी बेस्ड ही अराउंड फैमिली हो? बिल्कुल। तो उस मूवी का नाम है, चलिए बिना देर करते हुए हम बताते हैं, हम आपके हैं कौन। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समझन है। हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है, सामने समझी जी दार ही समधन है। धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना, धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना धिक धिक्ताना तिक्ताना धिक्ताना।
भी तुम खुशियों का खजाना धिक्काना 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 धिक्काना। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। नाना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। हाँ, हम आपके हैं कौन? वैसे आप भी बताइएगा कि हम आपके हैं कौन? बिल्कुल, कमेंट्स में प्लीज बताइएगा, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। हम आपके हैं कौन? तो 94 के एरा में ये मूवी आई और ये मूवी ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने, हर घर में, हर घर के फेवरेट्स बन गई, हर फैमिली में इसके गाने, हर फैमिली में ये एक रिकॉर्ड ब्रेक फिल्म के नाम से मशहूर हो गई। राजश्री प्रोडक्शंस की ये मूवी 94 में आई और जिसमें बहुत सारी, मतलब एक फैमिली के बहुत छोटे बड़े रिश्ते दिखाए, हाँ, हर किस्म भाई का रिश्ता बहन, कवर किया। हर तरह का रिश्ता। जी, जी, बिल्कुल। और बच्चों ने उस मूवी को एंजॉय किया, बड़ों ने एंजॉय किया, बूढ़े बड़े हर किस्म की एज के लोगों ने इस मूवी को इतना सराहा, इतना प्यार दिया, थिएटर में जाकर ये मूवी देखी। और मैं आपको बताऊं, सूरज बरजातिया की ये पहली मूवी नहीं थी, ये हाँ, तो पहली तो नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है फैमिली बेस्ड पहली थी। फैमिली बेस्ड पहली थी। हाँ, तो काफी सारी चीजें जैसे मैंने प्यार किया हमने आपके सामने पेश की थी, उससे भी इन्होंने काफी सीख लेने के बाद इन्होंने सोचा कि अगली मूवी में मैं बनाऊंगा ये मूवी प्रेम के साथ ही। वो मैंने प्यार किया के बाद प्रेम से जुड़ गए थे। तो बात करें अगर इस मूवी के बारे में आगे, तो इस मूवी की जो स्टोरी थी हाँ, काफी सिंपल थी। हाँ, कुछ वैसे सूरज बरजातिया के ये थे, स्टोरी हमेशा सिंपल रखते थे, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होता है स्टोरी लाइन का, कैरेक्टराइजेशन वगैरह, और जाहिर है गाने, लाइक ड्रामेटाइजेशन वी हाँ, विल से, ड्रामेटाइजेशन, और जो उनके हार्ट वार्मिंग, हार्ट टचिंग लम्हात होते हैं ना, वो वैसे मेरे ख्याल है कोई उन जैसा कोई मैच नहीं कर पाया। बिल्कुल, उस अगर फैमिली की वैल्यूज और एक दिल के रिश्ते, दिल के खिंचाव, दिल की चुभन और लगन की जो अक्कासी वो करते हैं, कोई और नहीं कर कोई और सकता। मैच नहीं कर पाया। तो हम आपके हैं कौन, मैं आपको कहूँ, ठीक है, लव स्टोरी सबके दिल के करीब होती है। मैं बचपन से हम आपके कौन देखते हुए बड़ी हुई हूँ, हमेशा से मैंने ऐसा सोचा है कि कल को मेरी शादी होगी, मुझे ऐसी फैमिली मिलेगी। मैं भी बचपन में जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो इस तरह की चीजें जब आपको बचपन में देखने को मिलती है ना, तो एक लाइफ में एक गोल मिलता है कि ओके, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, एक होप मिलती है। इस तरह के दुनिया में लोग हैं, फैमिली वैल्यूज को करने वाले, फैमिली को तवज्जो देने वाले। तो अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो प्रेम और निशा की जो लव स्टोरी दिखाई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ। तो उनकी लव स्टोरी के साथ साथ जो छोटे बड़े रिश्ते, चाहे वो भाई बहन के हों, जीजा साली का रिश्ता हो, भाभी और देवर का रिश्ता हो, मेरा ख्याल है हर रिश्ता उन्होंने कवर कर लिया था। बिल्कुल, मतलब मैं सबसे ज्यादा फैसिनेट हुई थी वो भाभी और देवर के रिश्ते से। कि एक दोस्त का रिश्ता, कि उससे इम्पोर्टेंट हस्बैंड की भी जो बातें थी वो आप अपने देवर से कर सकते हैं, विच इज वेरी कमेंडेबल। जिस तरह से उन्होंने हमें दिखाया, आंखों में आंसू भी आते थे, पर एक खुशी की फीलिंग भी आती थी। और एक उन्होंने जो चीज सूरज बरजातिया साहब करते हैं अपनी फिल्म में, खानदान की वैल्यूज तो दिखाते ही हैं। हालांकि खानदानों में अमूमन पॉलिटिक्स भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उस पहलू को भी बहुत एक मिठास भरे अंदाज में वो पेश करते हैं। तो वो चीज वाकई में उनकी हमेशा इससे इम्प्रेस रहा। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने फैमिली बेस्ड फिल्में बनाई, लेकिन ये मेरा ख्याल है टॉप पे है। बिल्कुल, मतलब लव स्टोरी में भी आप याद करें उस टाइम पे आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। आप अगर याद करें, ठीक है, सलमान माधुरी फिर भी काफी चर्पी थे, अपनी बातें कहते थे। आप याद करें मोनीश बहल का जो कैरेक्टर इस मूवी में उन्होंने दिखाया, आप मानेंगे नहीं, वो उनका पहली बार था जब वो एक पॉजिटिव किरदार में नजर आए। मैं एंड तक अब्दुल्ला जी, मैं यही सोचती रही, अभी कुछ नेगेटिव आएगा, he'll turn into something, no he cannot be like that। बट लोगों ने कितना पसंद किया उनका वो किरदार, जिस तरह से वो अपनी वाइफ से आंखों ही आंखों में आए हाय हाय हाय। तो जिस तरह से वो बातें होती थी, क्या व्हाट्सएप, क्या डीएम्स, और क्या हम आज की डेट में फोन पे रोमांस कर रहे हैं या बतिया रहे हैं। वो जो अंदाज था जो उन्होंने दिखाया, और होता भी था उस जमाने में, मतलब हम भी उसी एरा में बड़े हुए हैं,
जब ना फोन ज्यादा होते थे ना ही होती थी तो फेस टू फेस बातें, एक आंखों का भी आंखों की बातें, वो खत्म होता है। वो मैंने बिल्कुल उस मूवी में काफी बार, काफी इंस्टेंसेस मुझे उस मूवी के सीन्स याद हैं जिसमें मैंने इन दोनों का रोमांस, जो मोनीश बहल और रेणुका शाने जी का रोमांस था, वो सिर्फ आंखों आंखों में देखा है। एंड देन सलमान एज अ वेरी लाइक टीजिंग गाय, वो छेड़ता है दोनों को, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि फैमिली में बड़ों की शर्म के आगे दो लोग किस तरह से रोमांस करते हैं, वो बहुत ही बखूबी हमें सूरज बड़जात्या जी ने अपनी मूवी हम आपके कौन में दिखाया। एक और चीज मैं इस मामले में बताना चाहूंगी, सूरज बड़जात्या जी अपनी हर मूवी में पेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पेट्स को, हाँ। तो आप देखें हमारी पुरानी मूवी, यस, जैसे आप पिछले उसमें कितना अच्छा रोल निभाया, उनकी प्रेम कहानी को एक मोड़ दिया, एक प्रेम कहानी को पूरा करने में उस कबूतर का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसा ही एक लेजेंडरी रोल हमारी हम आपके अकाउंट में भी है, हमारे प्यारे, अच्छा हाँ, टफी। यस, टफी को आप कैसे भूल सकते हो। तो आज की डेट में तो उस टफी ने किस तरह का एक लेजेंडरी किरदार निभाया जो आज की डेट में कोई क्यूपिड ना कर पाया, और उस डेट में, उस एरा में टफी ने प्रेम और निशा की लव स्टोरी का विंग मैन बन गया। आई मीन ही वॉज द वन जिसने उन दोनों को मिलाया। एंड में आप सबको याद होगा, निशा उसे चिट्ठी देती है और क्या मोड़ लाया बंदा, मतलब अब उस वक्त मन कर रहा था एक कुत्ता मैं भी पाल लूं, हालांकि मेरे घर में बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट वो कुत्ते ने इतना फैसिनेट किया मूवी देखने के बाद कि आई वाज रियली आफ्टर माय डैड कि ओके पापा आप एक टफी हमारे घर भी। इतना ट्रेंड चल गया था पोमेरियन कुत्तों का उस समय, जस्ट बिकॉज़ बच्चों के नाम पे टफी रखने लगे। ओह रियली? नहीं वो तो तो देखिए तो किस तरह के लेजेंडरी किरदार इस मूवी ने बनाए हैं। प्रेम निशा को तो हम सब जानते हैं, तो मैं सीरियसली टफी के बारे में जरूर मेंशन करना चाहती थी। टफी को हमेशा याद रखिए, उसका जो रोल था बहुत सेंट्रल किरदार था। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप इसके कुछ फन फैक्ट्स बताइए, हम अक्सर नहीं, हम फन फैक्ट से नहीं, हम बिल्कुल याद करेंगे। फन फैक्ट से पहले मैं बात करना चाहूंगी इस फिल्म के म्यूजिक की। अरे हाँ, नहीं म्यूजिक का तो खैर मैं भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा था आखिर में करेंगे क्योंकि वो डिस्कशन लंबा हो जाएगा। अच्छा, म्यूजिक का ये है कि मैं भी गिन रहा था मेरे फोन हाथ में, मुझे याद भी नहीं आ रहे थे कितने गाने, 14 गाने निकले। 14 गाने, आई मीन आप मानोगे 14 गानों में से 12 गाने आपने मूवी में रिलीज कर दिए और रेस्ट 2 गाने उन्होंने फिर से पब्लिक डिमांड में उसे वापस डाले। मैं बताना चाहूंगी एक सॉन्ग था चॉकलेट लाइम जूस, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और उसके बाद था एक मुझसे जुदा होकर। एक सीन आता है मूवी में जब माधुरी उससे पूछती है कि कल मुझे क्यों रोका, सो एट दैट टाइम ही रिप्लाइज विद द सॉन्ग मुझसे जुदा होकर। बट ओरिजिनली जब हमने थिएटर में ये मूवी देखी तो ये सॉन्ग नहीं था। लेटर ऑन अब हम देखते हैं तो आई कुड कनेक्ट, ओ यार एक्चुअली ये आंसर दे रहा है। मेरा पॉइंट ये था, पिछले हफ्ते हम एक फिल्म का रिव्यू कर रहे थे, कयामत से कयामत तक, हाँ जिसमें सिर्फ 4 गाने थे। देखिए इस फिल्म में 14 गाने। 14 गाने तो अगर मिलाए जाएं तो बनते हैं 18 गाने, डिवाइड किया जाए तो बनते हैं 9 गाने। 9 गाने। चले मैं 9 की बात नहीं करूंगा, आपको इस फिल्म में से कयामत से कयामत में 3 गाने डालने होते तो कौन से डालती हैं आप? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चॉकलेट लाइम जूस नहीं फिट होता, तो शायद मैं डालना चाहूंगी एक आपका, हम एक जो उनका एक ट्रैक है जिसका आउटफिट आज मैंने पहना है, मौसम का जादू है मितवा। ये आपका बहुत परफेक्टली हम उधर फिट कर सकते थे, तो अगर आप मर्ज करना चाहें तो आप मौसम का जादू उठा सकते हैं। और अगर मैं पहला पहला प्यार भी, हालांकि ऑल लव स्टोरी सॉन्ग्स एक्सेप्ट द ग्रुप फैमिली सॉन्ग्स हम पिक कर सकते हैं। उनको नहीं हम डाल सकते, उनको हम डाल सकते हैं। यू नो, और ये जो अभी आपने कहा था कि ये मौसम का जादू है मित्रों। और एक और बताइए, एक और बताइए। समधी समदन को डाल नहीं सकते। समधी समदन आई थिंक वो उस मूवी में नहीं होगा, वो भी नहीं डाल सकते। बेचारे को तो जूते पड़ जाते हैं। हाँ, वाह रानी वाह राम जी, वाह राम जी भी नहीं, किसी की शादी नहीं होती कयामत से कयामत तक में, तो शायद दिखता ना डाल सकते। वो भी भाभी तुम कुछ योगा के जाना, हम नहीं डाल सकते। तो मैं बता रही हूँ बाकी सब गानों में आप किसी ना किसी फैमिली मेंबर या किसी का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, एक्सेप्ट दीज लव स्टोरी सॉन्ग्स। आई थिंक दीज टू वी कैन इजीली मर्ज, इजीली लाइक पुट इन कयामत से कयामत तक। तो अगर नासिर हुसैन साहब कहीं मेरी बात सुन रहे हैं या उनके रीमेकर्स, तो अगर आप कयामत से कयामत तो कभी री रिलीज करना चाहें तो आप ये 2 गाने उसमें डाल दीजिए। दोबारा बनाइए आमिर खान के बेटे के साथ, और नहीं आप हमें भी कास्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे भी आपको अपनी वो लुक्स दिखा चुके हैं, मैं रश्मि का किरदार काफी अच्छे से निभा सकती हूँ, तो अगर आप कास्ट करना चाहें तो प्लीज हम अवेलेबल हैं। और दिलचस्प चीज जो मुझे नजर आ रही है इस वक्त कि इसमें 14 जो गाने हैं उसमें ज्यादातर गाने लता और एसपी बालासुब्रमण्यम जी के थे। लता जी का आप फन फैक्ट्स के बारे में कह रहे थे तो हमने म्यूजिक की बात कर ली, पर मैं म्यूजिक फन फैक्ट्स तक जाने से पहले आपसे कहूंगी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस मेरा तो बाय फार वही है, क्या नाम है ये, पहला पहला प्यार।
आप हमेशा वहीं क्यों टिक जाते मेरा हैं? वो पहले प्यार पे अटक गया हूँ, मेरी सुई वहीं अटक गई थी। हालांकि उसके बाद बहुत प्यार हुए। आप तो सुनते ही रहते हैं मुझसे कि मैं हर फिल्म को का नाम ही बदल देता हूँ। बिल्कुल। फिर एक वाइज जो फिल्म मुझ पे बनी थी वो हम रिव्यू कर चुके हैं, मोहब्बतें, इतनी सारी मोहब्बतें। लेकिन पहला जो होता है ना, वो पहला ही रहता उसका है। पहले ही रहता है। और तो वो चाहे आपको 6 साल में हो जाए, बचपन में हो जाए, तो अपनी टीचर से हो गया था 6 साल की उम्र में, तो वो अच्छा ये सब भी हुआ था। चलिए ठीक है, फिर किसी कभी और इस पर दिन हम बात इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो मेरा अगर पर्सनल फेवरेट करेंगे तो वो समधी समदन वाला गाना और विदाई वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक चीज और नोट की, मैंने प्यार किया में भी कोई एक फोक सिंगर ने एक सॉन्ग गाया था, कहे तो से सजना। दैट्स अ डिफरेंट वन फ्रॉम द रेगुलर लता मंगेशकर सॉन्ग। एंड सेम चीज उन्होंने इस मूवी में भी रिपीट की, जब उसकी विदाई का गाना है बाबुल जो तूने सिखाया, दैट्स ऑल्सो अ फोक सिंगर। उन्होंने ये गाना लता मंगेशकर जी से नहीं गवाया, उन्होंने ये गाना किसने? इस movie श्रद्धा में। सिन्हा थी कोई। जी श्रद्धा सिन्हा। श्रद्धा वो अक्सर इनकी मूवीज में ये गाना गाती हैं और बहुत ही प्यारी आवाज है, बहुत ही डिफरेंट बहुत आवाज है। कड़क किस्म की आप नहीं सुना अगर ये गाना तो प्लीज आज अभी आफ्टर दिस शो ये गाना जरूर सुनिएगा। चलिए शिल्पा जी, फन फैक्ट्स बता दीजिए, मेरा तो बहुत दिल ललचा रहा है सुनने के लिए। क्या fun चलिए मैं facts? फन फैक्ट्स में आपको सबसे पहले बताऊंगी कि लता मंगेशकर जी, जैसे आपने बताया, इस मूवी के सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। तो इस गाने में, इस मूवी में जो 14 गाने हैं, तो ये 10 गाने एक ही 4 दिनों के पैनल में रिकॉर्ड किए गए थे, बैक टू बैक, बिकॉज लता मंगेशकर जी के पास डेट्स नहीं थी और सूरज बरजात्या जी को सारे गाने उन्हीं से गवाने थे। तो उसके बाद उन्हें लंदन एक कॉन्सर्ट में जाना था। तो बैक टू बैक विद इन 4 days all these songs, 10 songs were recorded by लता मंगेशकर। लता जी की। आप जहां हैं, मैं ग्रैंड सल्यूट आपको। आपकी आवाज ये हम सब जानते हैं, आप एक कोयल की आवाज से नवाजिश थी ऐसी आपकी। आवाज ना कभी नहीं आएगी, बिल्कुल ना ही कभी आई थी। दूसरा फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या आप सोच सकते हैं कि ये मूवी एक रीमेक थी? रीमेक इंडियन ही फिल्म की? इंडियन फिल्म की। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकता। तो और मैंने तो सुना भी नहीं। यस ये फिल्म एक रीमेक थी। तो अगर आप लोग अब सुन रहे हैं तो 19 आई गेस 82 में, यस मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 1982 में एक मूवी आई थी नदिया के पार। अच्छा हाँ हाँ, नदिया के पार का नाम सुना है। मैं भी तो सुना ही वो था। मूवी थी सचिन की। सचिन से तो हम सब वाकिफ हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है। वो इस मूवी के सलमान खान वाले किरदार में लीड रोल में थे और साथ में श्रद्धा सिन्हा और लीड रोल में वो भी थी। तो ये अगर आप आज ये मूवी जाके देखें, मैं आपको बताऊं सीन टू सीन आपको वो सारे स्टिल्स दिखेंगे। एक चीज बताना चाहूंगी, आपने एक सॉन्ग सुना है दिखता ना भाभी तुम खुशियों का क्या जाना। तो पुरानी नदिया के पार में उसमें आपने गांव वाली लैंग्वेज यूज की है। सो व्हाट द सॉन्ग इज, साची कहो तो है आवन से हमरी अंगना में आई बाहर भौजी। सो इनफैक्ट लिरिक्स चेंज है बट क्रक्स वही है। उसमें भी वो अपनी भाभी के लिए कुछ सॉन्ग आ रहे हैं एंड जस्ट मेकिंग हर फील गुड एट होम, एंड द सेम थिंग सचिन इज डूइंग इन नदिया के पार। अच्छा, तो अगर आपने नदिया के पार नहीं देखी एंड यू वांट टू, उसमें टफी है क्या? नहीं उसमें टफी नहीं है। देखिए कुछ चीजें आपको मिलेंगी, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया है सूरज जी ने, लाइक माधुरी की लुक्स पे बहुत काम किया है, माधुरी और दोनों बहनों पे काफी सारी चीजें चेंज है, बट आप देखिए सेम भी है, पर कुछ चीजें आपको अलग भी लगेंगी। पर भी अपनी लुक पे बहुत काम किया है। बिल्कुल, आज मैं बहुत ज्यादा काम करके आई हूँ, मुझे बहुत देर लगी तैयार होने में। जी माधुरी जी। बट फाइनली आई थिंक इन्होंने आगे ही बोला कि हाँ मैं लग रही हूँ माधुरी। तो आप भी हमें बताएं कि क्या हम लग रहे हैं आज सलमान और माधुरी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगला फन फैक्ट, जी अगला फन फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये मूवी, आप जानते हैं एम एफ हुसैन, आई गेस हम सब वाकिफ हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है। वो मूवी, ये मूवी एम एफ हुसैन जी ने 85 टाइम्स देखी, एंड दैट टू ऑन थिएटर। 85 टाइम्स ये मूवी देखने के बाद वो माधुरी दीक्षित के इतने बड़े फैन बन गए। और आपको पता है उन्होंने उसकी एक पेंटिंग बनाई, एंड देन आफ्टर पेंटिंग ही डायरेक्टेड अ मूवी एंड ही कास्टेड माधुरी। द मूवी नेम वाज गजगामिनी, though it didn't do well, but that was a very like a fact which I wanted to share with you कि उन्होंने ये मूवी 85 टाइम्स इसको वहां देखी थिएटर पे। मैं हुसैन साहब से कहूंगा कि शाबाश, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन आप लाइन में लग जाइए और मेरे पीछे रहिएगा, क्योंकि मैं उस लाइन में काफी आगे हूँ माधुरी की फैनशिप में। तो इस मूवी में आप चलो उस वक्त कैच करो, 94 में ये मूवी आई थी, कितना बिजनेस किया होगा? बिजनेस हाँ वैसे ये फिगर लगाना तो मुश्किल, लेकिन काफी किया होगा। मेरे ख्याल है सूरज बरजाटिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉस मूवी है।
उस मूवी उस साल में या उसके आगे पीछे वाले साल में भी किसी मूवी ने भी इतना बिजनेस नहीं किया। आप मानेंगे 94 में 100 करोड़, 100 करोड़ क्लब की ये मूवी है, और वो आज तक कभी मतलब उस आसपास भी कोई भी मूवी ने इतना कवर नहीं किया। सो दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग ये इस मूवी ने हमें दिखाया। इस मूवी ने जिस तरह से हमें फैमिली वैल्यूज दिखाई, जिस तरह से हमें एक दूसरे की फैमिली या अपने मम्मी पापा के करीब लाया, आई होप आप सबको भी उतना ही मजा आया होगा ये मूवी देखने में। और अगर आप फिर से रीलिव करना चाहते हैं इस मूवी का मजा, तो आज प्लीज ये मूवी जरूर देखिए और याद कीजिए कुछ यादगार लम्हे, हमें याद कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए। प्लीज हमें आखिर में ये जरूर बताइएगा कि हम आपके हैं कौन। बिल्कुल आप भी गौर कीजिएगा इस पे जरा। बड़ा मैं आपको शो के बाद बताती हूँ। बड़ा गहरा सवाल था जिसका जवाब आज तक शायद मिला ही नहीं। पूछते ही रह गए। किससे पूछा आपने? मैं तो बहुत से पूछा था, मुझे भी कभी नहीं मिला। तो आपको वैसे ये याद है इस मूवी में कब पूछा गया? हाँ, ये नहीं याद। आपको नहीं है याद? इस मूवी में दोनों ने एक दूसरे से पूछा है। सलमान ने भी माधुरी से पूछा है कि हम आपके हैं कौन, और माधुरी ने भी सलमान से पूछा है। तो ठीक है, तो ये आप हमें बताएंगे कि किस सीन में पूछा है। जाइए मूवी रिवाइज कीजिए, कम बैक एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि किस सीन में सलमान ने माधुरी से ये पूछा और माधुरी ने सलमान से। तब तक हम विदा लेते हैं आपसे। शिल्पा जी से आप मिलेंगे अगले हफ्ते प्रोग्राम में, लेकिन जाइएगा मत, अभी हम ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है मेरे शो पे जिसका नाम है चाय पे चर्चा। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त दक्ष आज लेके आया हूँ अपने बहुत ही अजीज मित्र को, जिनका इत्तेफाकन नाम भी एजाज है। तो एजाज जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू दक्ष, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। बिल्कुल बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। आज हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं 2 मुद्दे लेके आया हूँ। पहला मुद्दा है इमिग्रेशन के बारे में, और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, वो है जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे एजाज जी, आपको क्या लगता है जो कनेडियन इकोनॉमी और इमिग्रेशन का हाल चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए दक्ष, बात ये है कि शादी हॉल में जगह आपके पास 200 बारातियों की। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बाराती आपने 1000 मंगा ली। हाँ जी। ठीक है, अब आपने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे ही दरवाजा खुला तो 1000 बाराती अंदर आ गए। हाँ जी। ठीक है, अब दूल्हे का बाप परेशान हो गया, खाना खत्म हो गया। अब 1000 बाराती अंदर आएंगे और 200 लोगों का खाना होगा, तो फिर समझ लें आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इन्होंने। कुल मिला के यही हुआ है कि कनाडा का हाल अभी जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं। सरकार ने लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन अब उनसे लोग संभाले नहीं जा रहे हैं, और वो ब्लेम भी उन लोगों पे ही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फनी कोई बात हो सकती है। इसी से मुद्दा एक रिलेटेड ये है कि मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमी है इससे कैसे लिंक्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की डेट में स्पेशली इंडियंस के खिलाफ एक बहुत रेसिज्म बहुत ज्यादा फैल गया है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि हाउ इट इज अफेक्टिंग लाइक ऑल ऑफ द इमिग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया साइड से? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कनाडा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो कैसे? और वो ऐसे कि इवन आवर टैक्सी ड्राइवर्स and Uber drivers are PhD graduates and engineers and lawyers and doctorates. दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन कनाडा is like, you know, cream of the world comes over here to be the taxi driver. बिल्कुल, आपने सही बोला। इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि what I've been seeing, मैं जब भी Uber लेता हूँ या Lyft लेता हूँ, what I've noticed is, मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप करते क्या हैं? Everybody like उसके पास एक मास्टर्स डिग्री है, और I have been to taxis जहां पर डॉक्टर्स बैठ के गाड़ी चला रहे हैं बिकॉज दे कांट प्रैक्टिस इन कनाडा, एंड वी आर फेसिंग अ हेल्थ केयर शॉर्टेज एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब ये कैसा सिस्टम है? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। तो ये किस तरीके से और किसको बेनिफिट कर रहा है? देखिए, बात ये है कि आपका जो यहाँ पे कैनेडियन इमिग्रेशन का सिस्टम है, उसमें ये है कि जब कनाडा को पैसे चाहिए थे तो कनाडा ने आपके स्टूडेंट्स मंगाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रेवेन्यू जनरेट किया। $3.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है कनाडा ने। ये गूगल की रिपोर्ट है, आप उसको देखें, और ये 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब कनाडा का अपना काम हो गया, उनका रेवेन्यू जनरेट हो गया, अब उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया। हाँ जी। अब उनके पास वो लेबर जो थी वो आ गई है, एक्सेस आ गई है, अब उनको बंदे वापस भेजने। बिल्कुल। तो इस वजह से ये चीज़ इफेक्ट करेगी। अब ये चीज़ हॉस्पिटल्स पे, आपके मेडिकल सिस्टम पे इफेक्ट करेगी, आपकी जॉब्स पे इफेक्ट करेगी, आपकी सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया है,
आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रैम्पटन साइड में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या हो रहा है एंड व्हाट वी कैन डू, मतलब सिस्टम को समझना, इमिग्रेशन को। मार्क मिलर आते हैं, पिछले 3 महीने में मुझे लगता है इतने सारे इमिग्रेशन में चेंजेस आ गए हैं जितने मैंने 3 साल में नहीं देखे हैं। एंड सडनली सारे जो एनिमीज हैं इनके वो साउथ एशियंस बन गए हैं, क्योंकि टिम हॉर्टन्स में भी उनके हिसाब से वही काम कर रहे हैं, आईटी में भी वही काम कर रहे हैं। तो लेट मी, मतलब मेरे को हेल्प कीजिए ये समझने में कि आपका क्या मानना है इस विषय में। देखिए, आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। हाँ जी। जॉब्स क्यों नहीं है? जॉब्स हैं, बिल्कुल जॉब्स हैं। हाँ। आपको अगर 250,000 जॉब लैंड करनी है तो उसके लिए आपको आईटी पढ़ना है, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, आपको मेडिकल पढ़ना है। अगर आप जनरल स्टडीज ले रहे हैं तो फिर यू बिलोंग टू स्टारबक्स। ठीक है, आप that is a very harsh statement, honestly. तो नहीं, अब दिस इज द रियलिटी। अब आप देखें ना, आप इफ यू स्टडी जनरल फिटनेस स्टडीज और आप इस तरह की जनरल स्टडीज कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह लेबर जॉब्स ही मिलेंगी। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, लाइक यू हैव टू स्टडी समथिंग आईटी और इंजीनियरिंग फॉर दैट। नहीं, आई टोटली एग्री विद दिस एज वेल। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं और अलग अलग कंट्रीज से उनके अलग अलग सिनेरियोज है, राइट। उस समय ऐसा दौर था जब कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती थी कि आप आ जाइए, आप यहाँ पढ़ने आइए और आपको पीआर मिल जाएगी। अब सडनली गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं जी, हमने बहुत लोग बुला लिए हैं एंड वी कांट टेक एनी मोर। सो इट इज द डबल स्टैंडर्ड। आई टोटली अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट के पास राइट है, इफ दे आर नॉट फीलिंग, वो टोटली इस प्रोग्राम को शट डाउन कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ दैट आप एक बार सोच के देखिए कितनी मिलियन लाइफ्स को अफेक्ट हुआ है। नहीं, लेकिन दिस इज मतलब दिल तोड़ने वाली बात है कि इतने सारे लोग लोन लेके अपनी फैमिलीज को छोड़ के कैसा स्ट्रगल करके आए हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट व्हिच इज वेरी सीरियस एजाज। अगर आपको नहीं पता हो, जो लोग इसको देख रहे हैं, तो जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, स्पेशली जो पैलेस्टाइन से आ रहे हैं, जहां पे इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, वहां पर क्या हो रहा है, इजराइल जो इनका एलाय है, वहां पे जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, वो लोग पैलेस्टाइन से यहाँ आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग $3,000 एट द एयरपोर्ट, they are getting free stays at the hotel and getting the citizenship. So what do you think कि this is the right approach? या फिर जो लोग वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आके मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, और या फिर वो डॉक्टर्स जो टैक्सी चला रहे हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि चेक एंड बैलेंस किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात जो आपने कही कि जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पाकिस्तान से और इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज से वो स्पेंड कर रहे हैं और लाइफ स्टेक पे लगा के जमीनें बेच के वो यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं और लोन्स लेके आते हैं। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको पीआर प्रोवाइड करे। ये आपको पूरा रिसर्च करके आना चाहिए, अपना पूरा होमवर्क करके आना चाहिए कि कौन सी जॉब्स हैं। चाहे कोई भी एजेंट आपको इंडिया में या पाकिस्तान में कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपको अपना होमवर्क करके आना चाहिए कि आपके पास वहां पर जॉब सिक्योरिटीज हैं या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही डॉक्टर्स वाली बात, तो वहां मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वहां पे ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कुछ दूसरा मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर फीस ले रही है। और उस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने बात की कि हेल्थ केयर में, मैं आपको आंसर नहीं कर सका था कि हेल्थ केयर डैमेज हो रहा है और बाकी सेक्टर्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपको उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं हेल्थ केयर पे एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आई बीन टू इमरजेंसी वार्ड एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि मेरे को वहां पे 12 घंटा बैठना पड़ा एक छोटे से चोट के इलाज के लिए, which is funny and ironic, and मैं मतलब बता नहीं सकता कि how I feel about that. And this is a expression of a normal Canadian living in Canada right now. Food prices इतने high हो गए हैं and everything, the blame goes to the immigrants जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। I understand we are not doing, all the immigrants are not doing things correctly. I understand that. बहुत लोग यहाँ पे जो क्राइम कर रहे हैं, I totally agree with that. उनके साथ बुरा होना चाहिए, they should be deported if needed, right? But not all immigrants are like that, and we should keep it in mind. Whoever is watching it right now, all the immigrants are not bad for this society, and Canada needs immigrants right now. So we need to be careful of who we are inviting as Canadian, and if we see any doctors, nurses, we need them urgently. They don't need to ride or drive Uber or Lyft. That is one thing for sure, right? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से यहाँ पे सहमत हूँ। I totally agree, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा, इतना मुझे भावुक होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है as an immigrant myself, I feel really bad about what's going on right now. But उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखें
इस चैनल के माध्यम से और आप इस सिचुएशन को समझें एज एन इमिग्रेंट, चाहे वो ब्रैम्पटन में प्रोटेस्ट हो, आई नो कि उनकी कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो इवन आई वुड से कि दीज आर रॉन्ग। एंड अभी एक मिनिस्टर ने कहा था जो आप मुझे बता रहे थे, एक बार आप जरा बताएं, कितना फनी है, आप एक बार सुनिए। देखें, एज बॉनी क्रॉम्बी सेड, आई डोंट केयर अबाउट ब्रैम्पटन। तो दिस इज द स्टेटमेंट। आप इस बात पे अब क्या बोलेंगे जब आपके मिनिस्टर्स, एमपीज ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट? सो बट आई फील रियली बैड एंड आई होप दिस वीडियो और दिस प्रोग्राम रीचेज यू टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इमिग्रेंट्स आर, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ द पीपल हु आर हार्मिंग द सोसाइटी इन एनी वे। मैं आपकी बात में कुछ एडिशन करना चाहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। कि देखें, हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। हाँ जी। जब हम किसी और कंट्री में, किसी और देश में जाते हैं, तो हम अपना कंट्री, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इट इज वेरी गुड एंड नेसेसरी टू स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स। आप जुड़े रहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है आपके लिए दूसरी जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस कल्चर को अडॉप्ट करना। बिल्कुल, 100%। ठीक है, अगर आप उसके अंदर ढल नहीं सकते हैं, बिल्कुल, आप यहाँ आए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, इंश्योरेंस लिया, सब कुछ लिया, इंडिया पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज में हम बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप सबसे पहले आप लाइसेंस लेते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ के बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए और ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि आप अपना कल्चर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पंजाब, जो भी कल्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। इसी नोट पे मुझे लगता है कि आज का माहौल थोड़ा गर्म हो गया, गर्मा गर्मी मेरे अंदर से बहुत आ गई मुझे लगता है मैं भावनाओं में ज्यादा बह गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा। ऐसे ही हम लोग को देखते रहिए और पसंद करते रहिए, वरना हमें आवाज वाले इतना पसंद कर नहीं रहे हैं। तो कोशिश कीजिए हमें और देखिए, और तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे, और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। So, now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor,
जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc, Zoc वालों के लिए. जी नाज़रीन, welcome back to our show, Domastane. That is impressive. That's like chop, 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 chop. अभी हमने सेगमेंट के शुरू में मिंगली का पूछा तो आपके भरपूर कमेंट्स आए, भरपूर कमेंट्स हैं। कमेंट्स तो अब तो ऐसे रोल हो रहे हैं। पता नहीं कि अब मिंगली मेरा रिश्तेदार है कि मेरा पड़ोसी था, मेरी कंपनी का मालिक था। किसी ने कहा नहीं मिंगली नहीं, उसने मिंग ने ली है। मिंग ने ली है। मिंग ने ली। बहरहाल, स्पीकिंग ऑफ ली और मिंगली or Lees. Oh man. Who Lee. We gotta stop this. We cannot stop this. I have a really good joke for you. This is not even a dad joke. Is it a racist joke? It is a no. It's not even a racist joke. Well, actually, I'll let you be the judge of that. Okay. So, which vegetable is the best at kung fu? That's not racist. Kung fu. No, that's just a question. Answer it. Kung fu. Kung fu. I know it's a green of some sort. I'll give you a hint. It rhymes with Ming Li. Come on, you know it, man. It's broccoli. Okay, is it really broccoli? But that's I didn't even know that. But that's racist, man. क्या कर रहे हो यार? No, you're saying I'm racist? पिछले हफ्ते तुम you were in hot water for this, man. No, but Now first Ming Li, अब ये broccoli क्या शुरू कर दिया? अच्छा, look, man. Okay, in all honesty, man, अब्दुल्ला, यार देखो मजाक से अलावा. Yeah. मैं कोई उसके खिलाफ थोड़ी बात कर रहा था चाइना के कल उस पिछले हफ्ते मैं तो बकायदा मैं तो उनकी वो तारीफ कर रहा था। नहीं पर यार उनके फेवर में बात कर रहा था। As Joey once said that it's not what you say, it's how you say it. तुमने मिंग ली नहीं कहा, तुमने मिंग ली। नहीं तो मिंग ली मैं इमोशन से कह रहा था, मैं जज्बात में आके मैं वो कर रहा था मिंग ली। बस अब तो तुम पे वो रेसिस्ट का ठप्पा लग चुका है। ये गलत है यार, ये बहुत गलत है क्योंकि नहीं, hold on a second, we'll talk about that. Okay, you're saying I'm racist? Yeah, look, I'm racist as hell. Well, we're all racist, Abdullah, but you're always ये जो है ना, ये अपने फौजी साहब रेसिज्म करते भी हैं, फिर रेसिज्म को डिफेंड भी करते हैं कि नहीं भाई होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। On what grounds, man? नहीं, okay, देखा ये मुझे कहता है कि मैं मतलब इसको डिफेंड करता हूँ, नहीं डिफेंड नहीं, मतलब उसके खिलाफ हूँ मैं अब रेसिज्म, जो कि मैं हूँ, मैं वाकई सच्ची मुच्ची ली हूँ। हाँ, मैं हूँ इसके खिलाफ, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसकी जो फिलॉसफी, इसकी जो नजरिया जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। महाशय को असल में ये पता नहीं कि रेसिज्म होता क्या है। इनको लगता है कि भाई हमने किसी गोरे ने किसी काले को काला कह दिया, that's racism, because that's what the world thinks. But isn't that what that is? No, but that's what you think. That's what you think. हमने if I'm पाकी और मैं किसी को चीनी का मजाक उड़ा दूं, that's racism. But who you think the white supremacists are the biggest racists? That's what the world thinks. That's what you think. That's a great segue. Look, I'm not saying no. I'm in agreement with you, Abdullah. I'm in complete agreement with you. बात तो सही नहीं, दुरुस्त बात की है तुमने 100%। तुम बताओ कि सबसे बड़ा रेसिस्ट कौन है इस दुनिया में? देखो आप लोग क्या मतलब क्या समझते हैं जब आप एक गोरे को देखते हैं या आप किसी चीनी को देखते हैं और वो कहते हैं किसी और कलर को या किसी और रेस को, वो कहते हैं I don't like that race. I don't like that race. You know, we're superior to them, or we just don't mix with them. I can understand that because I mean that's what racism is, Abdullah. That's exactly what racism is. I think it goes well beyond that. But what happens when you kind of look the same? हाँ, ये अब आप मुद्दे पे आ गए हैं। You know, यार इंडियन आता है, इंडियन पाकी को देखता है, कहता है साले ये पाकी साले ही हैं, उसके ऊपर वो रेसिस्ट होते हैं। पाकी साला वो बंगाली को देखता है, वो कहते हैं छी ये क्या है यार, इसके मुझे तो घिन आ रही है इनके सामने जाके। पता नहीं कहाँ से सैलाब में तैरता हुआ, सैलाब में तैरता हुआ, पता नहीं कि मछली इसके मुंह में है, कान में, पता नहीं कुछ और वो फंसी हुई है कहीं। And then it's even worse that the Sri Lankans or the Bengali are making fun of the Tamils. ये तो आप अलग-अलग मुल्कों की बात कर रहे हैं। हाँ, आप पाकिस्तान चले जाइए। अबे यार, कराची वाले लाहौर वालों को, वो पेशावर वालों को, पठानों को हैं,
अबे तुम लोग को पता क्या है कि रेसिज्म क्या है? हैं? तुम you guys are nuts. You don't know what racism is. I think they are the ones who know what racism is because इजाद ही इन्होंने किया है. नहीं वही तो ये तो आप देखें. मैं वो दूसरे नजरिए से बात कर रहा था ना, जो गोरों को लेके. हाँ, गोरे तो सिर्फ देखिए कलर के खिलाफ होते हैं. हम तो हैं मुल्कों के खिलाफ. मुल्कों के खिलाफ. शहरों के खिलाफ यार, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ है यार. कराची के अंदर. अबे ओए नाज़िमाबाद के 4 नंबरी कहाँ जा रहा है तू? और फिर वो तो छोड़िए, तो मोहल्ले भी अलग है. एक ही मोहल्ले में रहते हैं. वो नीचे ऊपर वो परवेज साहब रहेंगे. अबे वो दुकानदार के बाद. लेकिन यार ये रेसिज्म थोड़ी है यार, ये तो प्रेजुडिज्म है. ये रेसिज्म है. ये सोशल क्लास है जी. सोशल क्या कहते हैं उसको? इतनी क्लास है नहीं लोगों के. अच्छा, क्लासलेस है वो. बिल्कुल क्लास को समझे. तो वो सामने की शक्ल देख के बस वही ना. मतलब यार ऑन अ सीरियस नोट, मजाक से अलावा ये अब तुम अगर यार गोरों को देखो, तुम यूरोप को देखो यार, इंग्लैंड को देखो, यूके को देखो यार, अमेरिका को देखो, कनाडा को देखो, उसमें वो सब साले हम भरे हुए हैं. अगर कोई गोरा अगर वहां देखे, वो कहे कि यार 30 साल पहले 40 साल पहले तो हम तो ऐसे नहीं गुजारा कर रहे थे. हम तो यार we were okay. All of a sudden all these goddamn crazy colored people start coming in and invading our country. लेकिन उसके बावजूद उनको वही राइट्स मिलते हैं. They get the same respect, they get all that stuff. इज्जत भी मिलती है उनको. लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में बैठे हैं आप, दिल्ली में या मुंबई में या हैदराबाद में या जाके गुजरात में जाके आप देखें, या पिंडी में जाके आप देखें, इस्लामाबाद में आप देखें, आपको इज्जत मिलेगी आपको? अबे यार रहने दो यार. अब्दुल्ला this got me pissed off. खुदा ना खास्ता मतलब कि लाहौर में आज गोरे आना शुरू हो जाएं. शुरू के 10 साल तो अच्छे गुजरेंगे. खुदा ना खास्ता गोरे आ रहे हैं. लेकिन 40 साल तक गोरे आते जाएं तो फिर हम भी यही कहेंगे ना कि भाई ये कहाँ से आ गए यार. देखो हम वो इज्जत नहीं देंगे इनको जो ये हमें दे रहे हैं. यार अब्दुल्ला तुम ये बात करो, जाके कराची में जाके देखो, कोई पठान वो बैठा हुआ है अगर किसी अपने पान की दुकान में, 100 बातें मिलेंगी उसको, इस बेचारे को. तो नाजरीन, सिर्फ हमारा पॉइंट ये था कि रेसिज्म जो है ना, सिर्फ एक गोरों के खिलाफ वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, महाज नहीं है. We as a brown community, and I can say this because we're on a channel. Yeah, man. And I mean, seriously, we are brown. You know, you guys start. Abdullah, we start. You know, all the goddamn brownies in North America or even across the ocean, they start, shitting on Trump all the time. Dumping their crap on him, saying, he wants to make America great again. So he wants to make America great again. If I'm in Pakistan and I see a goddamn Chinese guy or a white guy or a Greek guy coming in there, I'm gonna be like, "Sorry, teri pehno." चलो निकल यहाँ से. लेकिन क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर वो शऊर ही नहीं है. अगले हफ्ते ये क्लिप भी इनका वायरल होने वाला है. लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कम से कम यार तुम्हें वो अपनी इज्जत तो देते, अपने राइट्स तो देते हैं आपको. अंडर द आइन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वही राइट्स मिलते हैं जो एक गोरे को मिलते हैं. देखा आपने क्या गुस्सा दिला दिया इनको. बात करते हैं और आप मिंगली का सच. और मैं जो मिंगली की बात कर रहा था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था मैं, या कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था मैं. I meant every word I said. I think it's amazing what they did. They're fantastic. अगर इन सालों को, this is a different issue though, Abdullah. This is a completely different issue. I'm not talking, this ain't racism, but I'm just saying that if the powers to be or the Illuminati or whatever the hell they want to call themselves, if they don't like the Chinese or the Russians or the Turks, there's other ways to fix that than by being a little shit disturber and being a little crybaby and bitching and whining and banning them. Why you ban them when they can do something really good for the rest of the world? Screw you. Shame on you. Shame on you. थोड़ा चूल्हा कम कर दीजिए. आइंदा के लिए आप लोग मिंगली के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछिएगा इनसे. नहीं यार, हद हो गई यार ये तो. ठीक है. Anyhow, we have to wrap up the show now. कमाल है. अगली बार ध्यान से comments भेजिएगा हमें. We look forward to your comments and we appreciate them. But please, no more Mings and no more Lees. No, hey, listen, I'll talk about Ming Lee and I don't give a rat's ass because I respect Ming Lee. I love what they've done over there in China. And if you got a problem of that, I'm living right here in Canada. I live right here. You know what my address is. You probably know. Come and talk to me about it. Banning. अगले हफ्ते हम इनका एड्रेस भी टिकर पे लगा देंगे. इसके साथ ही हम अलविदा लेते हैं. Hey man, I'm out of here, man. This is ridiculous, man. I don't want to do this. Take this off. And we will be back next week. Hopefully, both of us together. This is bullshit. And see you again.
अल्लाह हाफिज, दुआ में याद। नहीं यार, मतलब क्या बकवास है यार, ये क्या मतलब